Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 6. Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट बुक and turn to page number 153. Take out your books and turn to page number 153. As you know students, we were done with the reading portion of the chapter. Chapter का हमने reading part कर लिया था and we have to start with the activity part. So let us start the activity part. Choose the correct alternative. Now what does this means, choose the correct alternative? It means that you have to choose a correct option given below in the question. Choose चुनना, the correct सही, alternative विकल्प. So students, आपको सही विकल्प चुनना है. आपको कई सारे विकल्प दिए होंगे क्वेश्चन में और उनमें से आपको एक चूज करना है, उनमें से एक आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है. Now let us begin. Which festival is also called Vijayadashmi? So it is asking that which festival is also known as Vijayadashmi? Which कौन सा फेस्टिवल त्योहार is also भी called कहलाता है विजयादशमी. So यहाँ कहा गया है कि कौन सा ऐसा त्योहार है जो विजयादशमी भी कहलाता है. First one is दीपावली, second is होली, third is दशहरा and D is Rakhi. So you have four options. First one Diwali, Dipavali, second Holi, third Dashera and D Rakhi. So students, you must be knowing the answer as we read this chapter about Dashera. ये चैप्टर हमने पढ़ा है जो कि दशहरा के बारे में है और विजयादशमी भी दशहरा को ही कहा जाता है. दशहरा इज नोन एज विजयादशमी. So your answer will be C, Dashera, D-U-S-S-E-H-R-A. Dashera is your right answer. So you will write C option in this red bracket. Students, आपका सही आंसर है दशहरा. So आप option number C इस red bracket में लिखेंगे. Now moving to the second question. Turn your page to 154. Dashera is the festival of dash. Now it is asking what is this festival about? Okay, Dashera is the festival of, त्योहार है का डैश. यानी यहाँ कहा गया है कि पूछा गया है आपसे कि दशहरा किस बारे में है, ये फेस्टिवल किस बारे में है, वो आपको बताना है. सो लेट अस रीड द ऑप्शन. विक्ट्री ऑफ गुड, अच्छाई की जीत. विक्ट्री ऑफ एविल, बुराई की जीत. विक्ट्री ऑफ इमोरल. नाउ हियर विक्ट्री ऑफ इमोरल मीन्स जो लोग अच्छा नहीं करते, जो खराब करते हैं, जो सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं, वो इमोरल, अनैतिक लोग जो होते हैं वो इमोरल. विक्ट्री ऑफ इमोरल यानी अनैतिकता की जीत. डी विक्ट्री ऑफ राक्षसास, विक्ट्री राक्षसों की विक्ट्री, राक्षसों की जीत. सो स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? विक्ट्री ऑफ गुड अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ एविल बुराई की जीत, विक्ट्री ऑफ इमोरल अनैतिकता की जीत, या विक्ट्री ऑफ राक्षसास राक्षसों की जीत. सो द राइट आंसर इज विक्ट्री ऑफ गुड, अच्छाई की जीत. सो यू हैव टू राइट ऑप्शन नंबर ए इन दिस रेड ब्रैकेट. इस रेड ब्रैकेट में आपको ऑप्शन नंबर ए लिखना है, सिर्फ ए, अल्फाबेट ए, स्मॉल लेटर वाला ए लिखना है. Now moving to the another question of this activity, that is B. Write yes in brackets if you agree or no if you don't agree
with the following statements. So you have to write yes if you agree with the statements given below, or if you don't, you have to write no. Write, लिखिए yes, हाँ, in brackets, इन खंडों में, if you, अगर आप एग्री करते हैं, सहमत हैं, और या नो, नहीं, if you, अगर आप डोंट एग्री, सहमत नहीं हैं, with द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स से, वाक्यों से. सो यहाँ कहा गया है कि अगर आप नीचे दिए गए वाक्यों से सहमत हैं तो वहाँ यस लिखिए, और अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो नो लिखिए, यानी नहीं लिखेंगे. सो फर्स्ट इज दशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष. नाउ स्टूडेंट्स, in the first paragraph of this chapter, we read that Dashera comes on the Ashwin month and on the 10th day of Ashwin month, that is Shukla Paksh. So we know that according to Hindu calendar, it is Shukla Paksh, not Krishna Paksh. So this one is नॉट राइट एंड वी वोंट एग्री विद दिस. स्टूडेंट्स, चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि जो दशहरा है वो 10वें दिन पर आता है अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में. सो ये स्टेटमेंट, ये वाक्य गलत है. सो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट में नो लिखेंगे, NO, नो लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, राइट नो विथ योर पेंसिल, NO, नो, इन दिस ब्रैकेट. नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेंटेंस of this exercise. Ram Leela describes the story of Ram. So here it is saying that Ram Leela describes, बताती है, the story, कहानी of Ram, राम की. So it is saying that राम लीला में राम की कहानी दर्शाई जाती है या बताई जाती है. So ये statement सही है क्या? Yes, this statement is true. So we will write yes, YES. Write YES in the second bracket. Students, write YES in the second bracket. Now coming to the third statement, Dashera is celebrated on Ashwin Shukla Dashmi. So it is saying that Dashera usually comes on Ashwin Shukla Dashmi every year. Dashera is celebrated, मनाया जाता है, on Ashwin Shukla Dashmi, अश्विन शुक्ल दशमी पर मनाया जाता है. सो यहाँ कहा गया है कि दशहरा अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है. सो दिस वन इज ट्रू एंड वी विल एग्री विद दिस. ये स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी यही कहा गया है कि 10वें दिन पर, दशमी मीन्स द 10th डे, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में जो 10वां दिन होता है उस दिन मनाया जाता है. सो ये स्टेटमेंट भी सही है और हम इसमें यस लिखेंगे. वी विल राइट YES, यस. Now coming to the fourth statement, we should follow good and give up evil. So it is saying that we must follow good and we should give up the evil one. We should, हमें करना चाहिए, follow, पालन, good, अच्छे का, and और give up, छोड़ देना चाहिए, evil, बुराई को. सो यहाँ कहा गया है स्टूडेंट्स कि हमें अच्छी चीज़ों का पालन करना चाहिए और बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. सो इज दिस स्टेटमेंट अग्रीएबल और नॉट? यस इट इज़. सो वी विल राइट यस. इस स्टेटमेंट से हम सहमत करते हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे यस. इस रेड ब्रैकेट में आपको लिखना है YES, यस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट. Hanuman's get up attracts children. So here it is said that children are attracted with Hanuman's get up. यहाँ कहा गया है कि Hanuman's get up, हनुमान का get up जो पहनावा है, attracts, आकर्षित करता है children, बच्चों को. So ये स्टेटमेंट कहता है कि बच्चों को हनुमान का जो पहनावा है वो काफ़ी अच्छा लगता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वी विल एग्री विद दिस. ये स्टेटमेंट सही है और हम इससे सहमत हैं. सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? YES. ये लास्ट ब्रैकेट जो है रेड में, उसमें हम लिखेंगे YES. ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू
learn and write this activity in your notebook in good and clean handwriting and send it to school's WhatsApp number before 9 o'clock, that is 7568077458. So students, आपको अपना होमवर्क अच्छी राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है, जो कि 7568077458 पर। स्टूडेंट्स, आपको ये होमवर्क अपनी रफ नोटबुक में लिखना है, एक्टिविटी 1 के क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।